our topic beta, significant figures and rounding off. Significant figures and your rounding off. फर्स्ट रूल देखिए बेटा, याद है सभी को, all the non-zero digits are always significant. All the non-zero digits, all the non-zero digits are significant. All the non-zero digits are significant. जितने भी non-zero digits रहेंगे वो पूरे के पूरे significant से रहेंगे. एग्जाम्पल देख लीजिए, 2 4 1 3, कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 1 2 3 4 4. These are all of them are non-zero, isn't it? 4 2 5 6 7, कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 5. ठीक है, रूल नंबर 2, all the zeros between two non-zero digits, between two non-zero digits are significant, no matter where the decimal point is present, where the decimal point is, if at all. ठीक है ना? पॉइंट नंबर 2 क्या दे रहा है? देखो, ऑल द जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. डेसिमल कहाँ लगा हुआ है इससे अपने को कोई मतलब नहीं है. डेसिमल कहाँ लगा हुआ है इससे अपने कोई मतलब नहीं है. राइट, एग्जांपल राइट नाउ देखिए, फॉर एग्जांपल इफ आई एम टेकिंग दिस वन एज 2.308, कितने सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगे बताइए इसके अंदर बेटा? 4. नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स विल बी इक्वल टू हाउ मच वर्किंग? 4. 4. 1 डेसिमल से कोई फर्क नहीं पड़ता. सो वी हैव 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस. ठीक है, इफ आई एम टेकिंग 23.08 mm, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता. मान के चले सेंटीमीटर्स में, ये मीटर्स में, mm में. इसमें Four. नंबर सिग्निफिकेंट फिगर्स 1 2 3 4. डेसिमल कहाँ है इससे अपने को कोई मतलब नहीं है. 4. क्लियर? इज इट क्लियर? आया बेटा? इसका बताइए. 2003 4. 4. चलो, पॉइंट नंबर 3, if the number is less than 1, the zeros on the right of decimal point but to the left of first non-zero digit, are not significant, चलो जल्दी से देख लो एक बार क्या बोल रहा है. उसने बोला if a number is lesser than 1, the zeros on the right of the decimal point, but to the left of the first non-zero digit, digits are not significant, they are not the significant numbers. एग्जाम्पल देख लीजिए बेटा, मैं मान के चलो 0.002308, 4 significant. नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने जाएंगे इसके अंदर?
4. 4. It has the 4 significant figures. बात समझ में आई? फिर number, either number is lesser than 1 बेटा. This number is lesser than 1 and the 0 on the right of the decimal point, but to the left of the first non-zero digits are non-significant. यानी ये significant नहीं होता, ये नहीं होता, ये नहीं होता decimal bar. So the number of significant figures मतलब 2, 3, 0, 8 are only the significant figures. Clear? इसके बताइए 0.02308. 4. This also has 4 significant figures. Clear? So, rule number 4. The terminal points, the terminal और टर्मिनल को और एक नाम भी बोलते हैं अपन ट्रेलिंग और ट्रेलिंग जीरोस. टर्मिनल मतलब लास्ट. आर ट्रेलिंग जीरोस in a number without a decimal point are not significant. Clear है? The terminal are trailing zeros बोल रहा है, यानी लास्ट वाले. The terminal are trailing zeros in a number without a decimal point are not significant. Isn't it? Are not significant. Very important. Example देख लीजिए. मान के चलिए if I'm having 1, 3, 2, 0. कितने significant figures हो गए बेटा? लास्ट के दो जो zeros है ना, these are not significant. The 3. number of significance कितने हो गए यहाँ पर? 3 significant figures. आई बात समझ में? चलो, 5th point. The trailing zeros in a number, with a decimal point are significant. Example देख लीजिए, like 3.600, not 000. इसमें कितने significant figure रहेंगे? 5. हाँ, decimal, the trailing zeros in a number with a decimal points are significant. Point के बाद जितने भी zeros रहेंगे, that will all be the significant. ये significant figure है, ये significant figure है, ये भी significant, ये भी significant है, ये भी significant. 1, 2, 3, 4, 5. 5 significant figures. Clear? इसका बताइए 3.500. 4. 4 significant figures. 0.06900. 4. 4 यानी पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद जो 0 आता है, that will be not significant. ठीक है ना? This is significant, this is significant, this is significant, this is significant. तो ये हो गया 4 significant figures. आ गई बात क्लियर? Yes, sir. इसका बताइए 2.02 into 10 to the power of 3. 2.02 into 10 to the power of 3. 3 significant figures. पावर जो रहता है ना बेटा, पावर का कोई भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं रहता. सो इट इज 1, 2 and 3. दिस हैज 3 significant figures. Clear? Is the 5th rule clear for everyone? What is the significant for this one beta? 2.3 into 10 to the power of 7. 2 significant figures. 2 significant figures. 2. Done beta? Sure. Next one. Next heading. Addition or subtraction rule in significant figures.
when I'm talking about your addition or subtraction rule in significant figures. देखो बेटा, जब भी आप ऐड और सबट्रैक्ट कर रहे हो ना, the final result should always retain जितने भी decimal places are there in a number, the least decimal place जो रहेगा ना, the answer should always be written in that one. बात समझ में आई? जब भी आप ऐड और सबट्रैक्ट कर रहे हो ना, एडिशन और सबट्रैक्शन करते से टाइम पे जितने भी नंबर आप ऐड कर रहे हो, जिस किसी नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर कम रहेगा, फाइनल आंसर भी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर में अपने को रखना है, isn't it? So I can write here, right, the condition, the final result whenever you are adding, the final result should retain as many decimals decimal places as are there in the number with least decimal places. बात समझ में आई? Is I'm clear with this one? ये पॉइंट क्लियर है सभी को? Yes, sir. जब भी आप ऐड और सबट्रैक्ट कर रहे हो ना, जब भी आप ऐड और सबट्रैक्ट कर रहे हो, तो फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन as many decimal places as are there in a number with the least significant, with the least decimal places जितना रहेगा, that will be your answer for, isn't it? मान के चलो, if I am adding this number in the addition part, if I am writing like 436.32, isn't it? Plus I'm adding right now for me 0.301 plus 227.2, सबको ऐड कर लो, कितना आ रहा देख लीजिए। सभी को ऐड करना बेटा। I'm writing here right now. This is plus 227.2 plus 0.301. पूरा ऐड करिए, आंसर कितना आ रहा बताइए? 663.38. 663.821. 663.821. तो अब इसमें बताइए किसके पास लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स है? इसमें कितने बताइए? 1 2 3 4 5. Last one. Significant figures 1 2 3 4. This has the 4 significant figures. This one is having how many significant figures better? 3 significant figures. 3 significant figures. Clear? पक्का? So, sirs, our answer should be 663. 663 आएगा। देखो कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स है। अपन आंसर क्या बोला है? The final result should retain as many decimal places. डेसिमल के बाद बोला मैंने, डेसिमल ये वर्ड आप लोग भूल रहे हो बेसिकली। डेसिमल प्लेसेस के बाद, डेसिमल प्लेसेस के बाद, डेसिमल प्लेसेस के पास इसके पास 2 है, डेसिमल प्लेसेस के बाद इसके पास 1 है, डेसिमल के पास इसके पास 3 है, यानी डेसिमल के बाद जितने लीस्ट रहेंगे उतना काउंट करके लिखोगे आप आंसर। यानी इसके बाद अब आंसर क्या हो जाएगा? 663.8। Yes, sir. बात समझ में आई? जी, sir. Isn't it? The final result should retain as many decimal places, यानी डेसिमल के बाद कितने नंबर और रहेंगे, और जो लीस्ट रहेगा फाइनल आंसर भी आपको डेसिमल के बाद उतने में ही रखना है। अपने को डेसिमल के बाद 0.821 आया, तो लेकिन यहाँ पर डेसिमल के बाद इस वाले पे 1 ही है, इस वाले पे 2 है, इस वाले पे 3 है, तो 2 1 वाले पे जो है ना इसी पे कंसीडर करना है। तो 663.821 कैन बी राउंड ऑफ टू 663.8। आई बात क्लियर? Yes, sir. सबट्रैक्शन में कभी भी वही रूल अप्लाई करना है बेटा, हम लोग प्रॉब्लम्स में करेंगे और, लेकिन फिलहाल तो रूल आप अप्लीकेबल कर लीजिए। नेक्स्ट वन इज, अगर आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, डिवीजन कर रहे हो, उस टाइम पे क्या करना है? क्योंकि लास्ट ईयर इस पे क्वेश्चन आया है बेटा, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन
देखने के लिए छोटा टॉपिक है, लेकिन पूरा एक 4 मार्क देखता है टॉपिक बेसिकली, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। अब इसमें जब भी आप एक मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन कर रहे हो ना बेटा, आपका जो रिजल्ट होगा, द रिजल्ट शुड रिटेन एज मेनी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एज देयर आर इन द ओरिजिनल नंबर, और जिसके पास लीस्ट रहेंगे ना, फाइनल आंसर भी आपको उसी में लिखना है। क्लियर है? तो आई कैन राइट द कंडीशन राइट नाउ देयर, द फाइनल स्टक हो रहा है। The final result should retain as many significant figures। इसके बाद की प्रॉब्लम्स करना इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, तो आप लोग को आता ही है, लेकिन थोड़े बच्चों के लिए लिख रहा हूँ मैं बेसिकली, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। The final result should retain as many number of significant figures as there are in the original number, in the original number with the least significant figures, with the least significant figures। बस समझ में आए? देखो एग्जाम्पल देख लीजिए, 2.73 इंटू 0.03 है, इसको मल्टीप्लीकेशन करिए बेटा, कितना आ रहा है देखिए। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है बताइए पहले। 2.73 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, इसके अंदर 1, 1, 1। तो यानी फाइनल आंसर आपको कितने में रखना है? द फाइनल रिजल्ट should retain as many significant figures as there are in the original number, क्या? with the least significant figures, 1, isn't it? तो अब इसका आंसर 2.73 into 0.03, this will come across for me 0.0819 कुछ आएगा। 0.0 डेसिमल के बाद तो कितना हो जाएगा? 0.08 आ गया। yes sir, देखो इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन डेसिमल के बाद कितने हैं? 2 है ना, तो डेसिमल के बाद 2 पॉइंट तक अपने को आंसर रखना, यानी 19 अपने को इन नॉन सिग्निफिकेंट फिगर पर जाएगा। सो 0.08 least significant figure में, the final result should retain as many significant figures as they are in the original number। लेकिन पॉइंट के बाद 0 जो है ना, this will become significant only if it is there 3, isn't it? तो इसी को भी आंसर हम लोग क्या करेंगे? 0.08 तक रखेंगे। आई होप यू गॉट एन आइडिया। इज इट क्लियर?
चलिए नेक्स्ट वन, राउंडिंग ऑफ। नेक्स्ट वन इज राउंडिंग ऑफ। याद है बेटा रूल्स? फर्स्ट रूल नंबर, देख लीजिए। अगर मेरे पास एक नंबर है, पहले समझने की कोशिश कर लीजिए। लाइक से फॉर एग्जांपल 2.745 है, isn't it? लास्ट नंबर 5 है, उसका प्रीसीडिंग नंबर अगर एक इवन नंबर है, देन इसको हम लोग राउंड ऑफ करते हैं 2.74। क्लियर है? उसी तरह से 2.735 है, अगर 5 के पहले जो नंबर है अगर वो एक ऑड नंबर है, if it is an odd number, then the preceding number will be increased by 1. इसको हम लोग राउंड ऑफ करेंगे 2.74। क्लियर है? लास्ट नंबर अपने पास 5 है बेटा, लास्ट नंबर अपने पास 5 है, एंड प्रीसीडिंग नंबर जो है ना इवन है, एक इवन है, देन उसको हम लोग एज इट इज छोड़ देंगे 2.74। अगर लास्ट नंबर अपने पास 5 है, उसका प्रीसीडिंग नंबर इफ इट इज एन ऑड नंबर, then the 3 will be increased by 1, यानी the answer will be 2.74। क्लियर बेटा? अब ये देखिए 2.5 है, इसको राउंड ऑफ कितना करेंगे बेटा? ये राउंड ऑफ कितना हो जाएगा? 2। क्लियर? अब मान के चलो 3.5 है, इसको राउंड ऑफ कितना हो जाएगा? 3. 3. हाँ 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 4. 4 होगा, बताओ क्यों? Odd number, right? Odd number. Odd number. It should be increased by 1, so it will be your 4. Got it? यही गलती करते हैं अपन। 2.5 में ये 2 क्या है बेटा, इवन है कि ऑड है? Even. इवन नंबर है तो इट विल बी 2। 3.5 में 3 इज एन ऑड नंबर, तो इट विल बी इंक्रीज्ड बाय 1, तो 4। आ गई बात क्लियर? Yes. अब वो Yes, रूल लिख लेते बेटे तो टाइम लगता है बेटा, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ बेसिकली, तो मेक श्योर ऑफ दैट वन। क्लियर है? yes, sir. Yes, sir. आई होप यू गॉट एन आइडिया। तो इससे ज्यादा रूल्स आप याद रखने की जरूरत नहीं है। वो थोड़े टाइप्स ऑफ एरर्स है बेटा, जैसे सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर, लीस्ट काउंट एरर, ये एक बार आप लोग पढ़ लीजिए। विल ट्राई टू डू द न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू दिस। चलो एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं सभी लोग मेरे साथ। द एरिया ऑफ ए स्क्वायर, the area of a square is 5.29 centimeter square. The area of 7 such squares, taking into account the significant figures, is, चले करिए। Options are 37 centimeter square, second option is 37.03 centimeter square, third option is 37.030 centimeter square, and fourth option is 37.0 centimeter square. आराम से, सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होने के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं मैं ये। The area of a square is 5.29 centimeter square. The area of 7 such squares will be equal to how much? The area of the square, area already दे चुका है कितना मेरे को, 5.29 centimeter square.
द एरिया, अब ये क्या करना है अपने को 7 टाइम्स लिखना है, दिस इज योर 7 टाइम्स, यानी 5.29 प्लस 5.29 प्लस ऑन अप टू 5.29, 7 टाइम्स लिखना है। तो कितना आ रहा? 37.03. 37.03। क्या राउंड ऑफ होगा ये? कोई राउंड ऑफ होगा क्या? क्या राउंड ऑफ होगा क्या? Total with answer for this one. Which option I can write, beta? Second one. Yes, sir. आया सभी को? और कुछ बोलना है किसी को? समझ में नहीं आया? सेकंड ऑप्शन, वेरी गुड। चलो ये क्वेश्चन का आंसर बताइए। Radius of a circle is 2.22 meters. First of all, according to the rule of significant figures SF, the area of circle is, first option is 15.475 meters square. Second option is 15.4 meters square. Third option is 15.48 meters square. And fourth option is 15.5 meters square. आराम से। रेडियस ऑफ द सर्किल दे रखा है बेटा अपने को। According to the rule of significant figures, area of circle. But sir, if we take 7 into consideration, then wouldn't it be the digit? Sir, बेटा 7 times बोला है, 7 times बोला है, यानी 7 into 5 point करो, isn't it? आफिया मन्नान, isn't it? Previous question में उसने क्या बोला है? The area of the square is already area दे रखा है. The area of 7 such squares कितना होगा? 7 such squares कितना होगा? बस समझ में आ रही है? सेवन टाइम्स करना है, यानी दिस विल बी एरिया विल बी इक्वल टू योर 7 ये 7 इंटू ए का एरिया कितना है 5.29, तो ये करें तो कितना आता है 73.03 आएगा। वही किया मैंने, यानी उसको ऐड कर रहे हैं सीधा सीधा, कुछ भी नहीं, दे मीन द सेम। हाँ बट वी कैन टेक 7 एज 7.0। नो, क्यों 7.0 लोगे? नहीं ले सकते बेटा। चलिए इसका आंसर बताइए। रेडियस ऑफ द सर्किल इज गिवन एज ऑफ योर 2.22 सेंटीमीटर, सॉरी 2.22 meters. Area of the according to the rule of significant figure, the area of the circle is how much? Area of the circle मतलब क्या हो जाएगा बेटा? Area is equals to pi r square. पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 इंटू रेडियस मतलब 2.22 इंटू 2.22, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन का खेल है यहाँ पर। ये पूरा देखो कितना आ रहा है। दिस इज समथिंग रियली 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 इंपॉर्टेंट फॉर मी। अब आराम से इसका कैलकुलेशन करके बताइए बुशरा जाकिर। 15.475176. 15.475116 475. मीटर स्क्वायर, इतना आंसर आ रहा है। अब कौन सा ऑप्शन टिक करके आओगे आप? Sir, 176. Third option. Sir, third option 15.48. पक्का? Yes, sir.
मेरा राजा बेटा देखो, इतना पूरा करने के बाद फिर आप लोग इसमें आंसर में मार्क जाके आए तो 4 + 1 6 मार्क 5 मार्क्स। सेकंड ऑप्शन सर। Second option, sir. देखो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है बेटा इसमें, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है ना, यस सर। है कि ना? यस सर। अब देखो, ही इज आस्किंग टू यूज द रूल ऑफ 5 के बाद क्या है मेरे पास, ऑड है कि इवन है? Odd. ऑड है तो -1. प्रीसीडिंग नंबर विल बी इंक्रीज्ड बाय 1। 15.48. This is also 7 na beta, Fourth option. isn't it? So this preceding number will be increased by 1, 15.48. 15.48। लेकिन आपने कौन सा 3 सिग्निफिकेंट फिगर में, 8 के बाद जो नंबर है राइट नाउ फॉर मी 1, 4 है, Yes, sir. isn't it? तो यहाँ पर जब निकल रहे हैं बेसिकली ये जो है ना 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है अपने को। When you are writing for 3 significant figures, so we need to write 1, 2, 3, 4. See the 7th one, it is 5, and the preceding number should be increased by your 1. तो ये कितना हो जाएगा 15.5। 7 के बाद का जो preceding number है that should be increased by your 1. Clear है? Am I clear with this one? Explain once, sir. पूरा आंसर कितना है बेटा 15.47516 मीटर स्क्वायर। अपने को आंसर कितने में लिखना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है कि नहीं? We need to use the rule of your 3 significant figures. तो यानी 1 5 this is 4 यहां तक ही लिखना है, लेकिन इसका जो नंबर है ना से बाद का नंबर जो 5 से ग्रेटर देन है, if it is greater than 5 the preceding number will be increased by 1. क्लियर? जैसा मान के चलो 12.26 है, isn't it? If the digit to be dropped is greater than 5 then preceding number will always be increased by 1. तो ये कितना हो जाएगा 12.3, मान के चलो 3.29 है, isn't it? So 9 is greater than 5 then preceding number will be increased by 1, so this will become for me 3.3. Sir, in first one we want 3 significant, we are rounding for मतलब before 6. In second option you have explained that no sir 3.29 we want 2 Exactly. significant figures. क्योंकि the preceding number, क्योंकि हम लोग को 3 significant figure में लिखना है ना, तो we'll be taking 15.4 but the last number is right now greater than 5, so the preceding number will be increased by 1. Sir, there is no role for the answer for this 5 no sir. No, there is a rule na beta. If the digit to be dropped is greater than 5 then increase the preceding number always by 1. No sir, after that 7 is 5 no sir. We don't have to After take 7 we consider. don't need it because we need to write the answer in terms of 3 significant Yes figures. sir, only. yes sir, yes sir, clear. Isn't it? अगर पूरा कंसीडर करते बैठोगे ना तो और टाइम लग जाएगा बस। बात समझ में आई? Yes sir, clear. और एक दे दो। Yes sir. चलो Sir. आ गया बेटा? सर हाँ बेटा बोलो। सर अगर वो 7 के जगह कोई और नंबर होता तो पूरा 6 से राउंड ऑफ करते वक्त आना पड़ता ना। हाँ 5 के बाद अगर ये देखो आप बोलते सर 15.4 अगर ये 8 होता 5 होता तो जब भी ये जो नंबर होता दिस विल बिकम फॉर मी 15.5 क्योंकि अपने को आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर में ही लिखना है। या अगर ये ऐसा होता 15.46 होता ग्रेटर देन 5 है then the preceding number will always be increased by 1, तो ये भी 15.5 ही होता। अगर यहाँ पर ये आंसर ऐसा होता 15.4 ये होता 4 15.4. तो आंसर कितना होता जब 15.4 होता। बात समझ में आई?
90% बच्चे इसको गलत करके आते हैं बेटा, यही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम देखने के लिए कोई छोटा प्रॉब्लम है, कंपलसरी जाने वाला एक क्वेश्चन है 100%। आई होप यू गॉट द क्लैरिटी इन दिस वन। यस सर। और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। और रूल लिख दूंगा यहाँ पर एक आइडिया आ जाएगा आप लोग। लिख देता हूँ यहाँ पर रूल, सो दैट विल गेट ए क्लैरिटी। सर इफ इट इज लेसर देन 5 देन 4 वी शुड राइट। यहाँ बेटा 4 ही लिखना, यहाँ पर नोट लिख के लिख दे रहा हूँ, देखो फिर भी आप लोग के लिए। इफ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, क्योंकि प्रॉब्लम में बोला है कि सिग्निफिकेंट फिगर का रूल यूज करो, 3 में ही रखना आपने। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज greater than 5, greater than 5, what you do is increase preceding digit by 1. Example देखो 12.26, the answer will be 12.3. 3.29, the answer will be 3.3. ठीक है? Is that clear? Yes. चलो, if the digit to be dropped, if the digit to be dropped is 5, followed by digit other than 0, then what you do is increase the preceding digit. Increase the preceding digit by 1. If the digit to be dropped is 5 beta and it is followed by a digit other than 0, यानी 0 छोड़ के कौन सा भी हो सकता है, then the preceding digit should be increased by 1, यानी 3.251 है सब। मुझे 5 को ड्रॉप करना है, तो this will become 3.3, 13.353 है समझो। मुझे 5 को ड्रॉप करना है, यानी the preceding digit will be increased by 1, 13.4। आगे ये बात क्लियर? Yes, sir. चलो इसको भी लिख लीजिए। Sir, can you please explain again? देखो क्वेश्चन में क्या बोला बेटा, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, मुझे 5 को ड्रॉप करना है बेटा, एंड इट इज फॉलोड बाय अदर देन 0, 0 नहीं होके कौन सा भी नंबर है, या देखो 5 का, इफ मुझे 5 को ड्रॉप करना है, isn't it? तो प्रीसीडिंग नंबर विल ऑलवेज बी इंक्रीज्ड बाय 1। यहां भी 5 को ड्रॉप करना है, प्रीसीडिंग नंबर विल ऑलवेज बी इंक्रीज्ड बाय 1। ठीक है? 0 को छोड़ के कौन सा भी नंबर रहे ना, उसको आप 1 से इंक्रीज कर लेना। डन? Yes. चलो, if the digit to be dropped, if the digit to be dropped is 5, इसको जरा सोच के बताइए आंसर। 5 followed by 0, then the preceding digit, remains as it is if it is even. पढ़ो जरा अच्छी तरह से। If the digit to be dropped is what beta for me? 5. If the digit to be dropped by me is 5, followed by your 0, then the preceding digit remains for me as it is. If it is an even number.
मान के चलो 3.250 है। 5 को मुझे ड्रॉप करना है। प्रीसीडिंग डिजिट रिमेन्स एज इट इज इफ इट इज एन इवन नंबर। टू इवन नंबर है कि ऑड नंबर है? इवन नंबर है, तो द आंसर विल बी 3.2। अब मान के चलो 13.450 है। 5 को मुझे ड्रॉप करना है, तो 4 इज एन इवन एंड ऑड? Even. इवन नंबर, तो आंसर कितने में आ जाएगा? 13.4। ठीक है। इफ इट इज ऑड, तो जब क्या करोगे? यहां पर लिख रहा हूं नंबर बी। इफ इट इज ऑड, यही कंडीशन के लिए, इफ इट इज ऑड, एग्जाम्पल देखो, सोच समझ के बताइए। 3.350 5 है एंड इसका प्रीसीडिंग नंबर इज एन ऑड नंबर, देन क्या करोगे? इफ इट Increase इज by ऑड, 1. then the preceding digit should be increased by 1. Yes. 3.4. Increase by 1. Whom? Preceding number. Preceding number is increased by 1. यानी इसका आंसर आ जाएगा 3.4। 4.750, 7 is an odd number, 4.8. 4.8. I hope you got an idea. Yes, sir. एक बार बताऊं, अगर मुझे 5 को ड्रॉप करना है और प्रीसीडिंग नंबर इज इवन, then keep that number as it is. If it is to be dropped, then the preceding number will be increased by 1 if it is an odd number. थोड़ा प्रैक्टिस करना बेटा, नहीं तो नहीं होता है टॉपिक। ऑड और इवन का बहुत भयंकर रहता क्वेश्चंस करते उस टाइम पे। चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करिए आप लोग सभी लोग। द एडिशन of lengths 100 meter and 0.2 meter up to appropriate significant figures. Up to appropriate significant figures will be. First option is 18 meter per second, 9 meter per second, 5 meter per second. Fourth one is 27 meter per second. चलो करके बताइए। आ गया बेटा? आ रहा बेटा? कितना आ रहा? The addition of the length is 100 meter and 0.02 meter up to appropriate significant figures will be equal to how much?
आई डिडंट गेट इट सर, किसको नहीं आया बेटा ये? आफिया मन्नान, कौन सा समझ में नहीं आया बेटा? सर एडिशन, नो सर, रुबीना बानो। चलो, the addition of the length 100 meter and 0.2 meter up to the appropriate significant figures will be equal to your how much? ऑप्शंस मैंने गलत दे दिया आप लोग को, सॉरी। Sir, I'm getting 0. Options are for me as 100 meters, 100.2 meters, 101 meter, and 100.02 meters. Sir, Sorry. 100 meter. I have taken wrong options. 100.2. Appropriate significant figures बोला है बेटा, appropriate significant figures बोला है, यानी दोनों को ऐड करना है अपन, isn't it? Addition अभी बोला था मैंने, L is equals to L1 plus L2. L1 की वैल्यू है 100 meters plus 0.2 meters, यानी आ जाएगा 100.2 meter, isn't it? ये बोला कि appropriate significant figures यानी L will be equal to 100 meters up to your appropriate significant figures. आ गया? Isn't clear? Sir, here we can apply that rule also, no, sir? Like addition, we have to take least number of decimal places. ये तो सीधा सीधा एडिशन ऑफ का रूल है ना बेटा। Yes, sir. हाँ, फिर अगर दोनों ऐड कर रहे हैं तो हाउ मच आई एम गेटिंग 100.2, लेकिन 100 के बाद 0.2 इज अ वेरी स्मॉल, ही इज यूजिंग अ वर्ड अप्रोप्रिएट। अगर आपके पास 100 रुपए है और 100 रुपए 5 पैसे, तो अगर आपके पास ओवरऑल कितने पैसे एग्जैक्टली अप्रोप्रिएट बोल दो, मतलब क्या हो जाएगा? 100 रुपीज ही बोलोगे ना, 0.5 का कोई मूल नहीं रहेगा। Yes, sir. अप्रोप्रिएट अगर वर्ड नहीं यूज करता तो 100.2 ही होता है बेसिकली। इज यूजिंग ए वर्ड अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स एडिशन के अंदर, तो नियर बाय आंसर में परफेक्टली देना पड़ेगा अपने को, पॉइंट्स में नहीं देंगे। तो 100 सेंटीमीटर अप टू द अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स। अप्रोप्रिएट नहीं बोलो तो लीस्ट डेसिमल प्लेस के हिसाब से सेकंड ऑप्शन होता है ना। हाँ, वैसे ही कर लेता है। क्लियर है? Yes, sir. और एक करोगे? Yes, sir. चलो, इसमें डैम श्योर है क्वेश्चन पढ़ता है बेटा आप लोगों को। ऐसे छोटे मिस्टेक करके आओगे ना तो करके बेकार हो जाता, पढ़ के बेकार होता। साल भर पढ़ना अलग बात रहता है, प्रैक्टिस के टाइम पे ये छोटे छोटे चीजें हमको कंपल्सरी याद रखना है, जरूरी। चलो इसको एक बार ट्राई करिए। द नंबर ऑफ द नंबर्स, स्टॉक क्यों हो रहा है, बहुत ज्यादा स्टॉक हो रहा है। चलो, द नंबर्स 2.735 and 2.785 on rounding off to three significant figures. To three significant figures will be how much? चलो ट्राई करो। 2.74, 2.78 and 2.78. Second option is 2.74 and 2.79. Third option is 2.74 and 2.78. Fourth option is 2.73 and 2.79. आराम से थर्ड ऑप्शन आ गया? थर्ड ऑप्शन। वेरी गुड। Yes. आ गया सभी को? देखो 2.735 में is to be round off is an odd number, so it will be increased by 1. ये तो odd number है ना बेटा, this is an odd number, so the preceding number will be increased by 1, यानी ये बन जाएगा 2 point, कितना बनेगा? 7.4 7.4, क्योंकि ये 5 है ना, this is the previous number is 3,
2.735 digits to be round off is right now for me odd, so it will be increased by 1, so ये बन जाएगा 2.74. अब ये देखिए 2.785 में digits to be round is right now for me even number, so it will left as it is. इसको हम लोग as it is left कर देंगे, preceding number को, ये हो गया even number, it will be as it is. 5 है ना बेटा, ये 5 है, preceding number will be increased by 1, यानी ये बन जाएगा 4. ये क्या है मेरे पास 5, द नंबर से पहले कौन सा है इवन है, तो इट विल बी रिमेन एज इट इज, यानी ये कितना हो जाएगा 2.780 रह जाएगा. सो द बेस्ट ऑप्शन व्हाट आई कैन राइट इज नथिंग बट फोर्थ ऑप्शन. Sir, we are making decision with respect to 5, no sir? एग्जैक्टली, विद रिस्पेक्ट टू 5, विद रिस्पेक्ट टू 5. लास्ट पे डिजिट करना है ना बेटा, अभी बताया मैंने आप लोग. Yes sir, no, you are marking that 7, no sir? एग्जैक्ट, ये वाला देखो, ये 5 है, preceding number is to be increased by 1, क्योंकि 3 is an what, an odd number, तो ये बन जाएगा मेरे पास 2.74. यहाँ पर 5 है and previous number, this one is right now for me even, this will be round off to your 2.781. clear? Clear. Yes, sir. क्यों के थोड़े क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा विद सिग्निफिकेंट फिगर्स. कल मैंने छोड़ दिया था, तो जल्दी जल्दी बोलो, मैक्सिमम बच्चे कर चुके होंगे एक बार तो आप लोग पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस, कि मैं आप पूरा करने के बाद आप लोगों को फिर एक बार भेजूंगा मैं. चलो ये आंसर बताइए, 2020 में पूछा देखो. टेकिंग इनटू अकाउंट द सिग्निफिकेंट फिगर्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9.9 मीटर्स माइनस 0.0099 मीटर्स. चलो ट्राई करिए. Taking into account the significant figures, what is the value of 9.99, यानी 9.99, ये कितने देखो पॉइंट के बाद 1 2 3 4, पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 ही है, तो इसको भी 4 कर दीजिए, isn't it? माइनस ये हो गया 0.0099 फोर्थ ऑप्शन. तीनों मीटर से, ये भी मीटर से, पता कितना आ रहा. सो यहाँ से हम लोग बोरो करेंगे तो ये हो जाएगा राइट नाउ फॉर मी 1, ये हो जाएगा मेरे पास 0, और यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास 8, और यहाँ पर हो जाएगा 9 पॉइंट, ये हो जाएगा 9. आ गया इतना. इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है बेटा, लीस्ट 3, तो आंसर भी आपको कितने में रखना पड़ेगा, 3 में रखना पड़ेगा, यानी 9.9. First option sir. फर्स्ट ऑप्शन विल बी द आंसर. आया. Yes sir. सबट्रैक्शन का रूल देखो एक बार, अभी ये सबट्रैक्शन का रूल में देख लो क्या बोला था मैंने आप लोग को. डन बेटा, आया सभी को. Yes sir. चलिए वेरी गुड. लास्ट ईयर का क्वेश्चन है किसी के पास सिग्निफिकेंट फिगर में? मेरे पास मिल गया, चलो ट्राई करो.
यहीं लिख रहा हूँ क्वेश्चन इसको। The area of rectangle, sorry, rectangular field, not rectangle. The area of rectangular field in the bracket meter square of length 55.3 meters and breadth 25 meters. After rounding off, the value for correct significant figure is first option is 1382, 1382.5, 14 into 10 power 2 and 138 into 10 power 1. 2022 नीट का क्वेश्चन है बेटा। लो ट्राई करिए। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल दे रखा है आपको। Sir, I have one doubt. यस बेटा। Sir, in that previous question, 0.0999, in that significant figures are 2, no? Significant figures are 2, right? So, least significant figure is 2, no? So, why not third option? 9.9 में 3 कितने हैं? 3. No, 0.009. Previous problem, sir. डेसिमल के बाद जितने भी zeros रहेंगे, that will be out for me. Yeah. Non-significant. Sir क्या बोला? Taking into account the significant figures, what is the value of 9.99 meter minus 0.009 meters? And this value is lesser than 1. Okay. I've got it. I told you that point. If any value is lesser than 1, then what happens? ये 1 से ज्यादा नहीं है ना बेटा, इससे कम ही है। Yes, sir. Isn't it? तो इसीलिए हम लोग इसका ही significant figure ले रहे हैं बेसिकली। Okay, sir. Thank you. The area of the rectangle. Area of the rectangle कैसे निकालोगे बताइए भाई? Area is equals to, इतना तो मैथ्स आता ही होगा अपने को। Area is equals to length into breadth, है कि नहीं? Length कितना दे रखा है प्रॉब्लम में? Length is 55.3 meters. Breadth is given for me 25 meters. Area निकालना है अपने को बस। चलो इसको ट्राई करो कितना आ रहा? Area is equals to length into breadth. Length की वैल्यू है 55.3 multiplied with your 25. तो कितना आ रहा देख लीजिए जल्दी से। 55.3 into 25. कितना आ रहा बेटा? First option. फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है। फोर्थ ऑप्शन मल्टीप्लिकेशन है ना बेटा? मैंने अभी मल्टीप्लिकेशन में आपको क्या बताया था? मल्टीप्लिकेशन के रोल में आप लोगों को क्या बताया था? Oh, sorry, third option, sir. Looking into third option. These significant figures. हाँ, तो ये कितना आ जाएगा? एक्चुअली 1382.5 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। यानी दिस कैन बी रिटन एज ऑफ योर हाउ मच वर्क? 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना हो ना, लेंथ एंड ब्रेथ में। लेंथ में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। हाँ, और इसके अंदर 2 सिग्निफिकेंट फिगर। योर आंसर शुड बी इन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यानी दिस विल बी इक्वल टू 13.8. The preceding number will be increased by your 1. यानी this will be equal to how much for me? 14. आ गया?
Yes, sir. So what will be the answer for this one? 14. आ गया? Sir, in the previous question, we don't have to consider, matlab. Which one? This one? Yes, sir. 2020 का? Least decimal places, no, sir. हाँ, Yes, तो ये sir. तो ये Not वैल्यू जो है ना lesser than 1 है ना बेटा? No, sir. Lesser than more also, matlab, we don't have to consider the significant figures in this. Yeah, we know we need not consider significant figures there. Because it's We taking consider just to take into significant account the figures. significant figures. Sir, if we consider significant figures, the significant figures are 2, no, sir, in that. Significant figures will be हाँ. Got Lesser it, than sir. 1 के लिए वही तो बताया था ना बेटा मैंने आपको. Yes, sir. सिग्निफिकेंट फिगर्स के बाद लेसर देन 1 है तो डेसिमल के बाद का 0 विल बिकम फॉर मी इनसिग्निफिकेंट. Sir. सी ये नंबर जो है ना लेसर देन 1 है ना, isn't it? Sir. डेसिमल के बाद जो 0 रहेगा दैट विल बिकम फॉर मी इनसिग्निफिकेंट. इट्स नॉट ए सिग्निफिकेंट नंबर. Sir, we can conclude that initial zeros are always insignificant. Yeah, for lesser than 0 it will be always be or insignificant. ये भी देखो. Sir, for non 0.000 में ये भी वैल्यू लेसर देन 0 था तो दो जीरोस इनसिग्निफिकेंट थे ना. Yes, sir. तो 4 सिग्निफिकेंट 4 ही बोला था. यहाँ पर भी देखो इसके लिए भी 4 ही बोला था. It's not less than also, no, sir. मतलब insignificant only. नॉट लेसर देन में देखो ये नॉट लेसर देन में के अंदर अगर 1.001 है. Between two non-zeros are significant, no, sir. नॉन जीरोस आर इन बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स ना, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 4. कितने हो गए? 4. Yes, sir. Got it. सिग्निफिकेंट फिगर के तो अब तक तो इतने ही क्वेश्चंस सीखे, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है इसमें. सर वो क्वेश्चन में लेकिन टू सिग्निफिकेंट ही है सर. क्या बोले? ये 99 ही है ना मैम सर. दो सी ऑप्शन आना सर. कौन सा? ये जो क्वेश्चन कर रहे थे 2020 का. हाँ 2020 का. इसके अंदर 2 सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगे, इसमें 3 रहेंगे. यस. isn't it? Answer is decimal place के हिसाब से देना ना. हाँ लीस्ट डेसिमल प्लेसेस जो रहेगा ना वो लेना पड़ेगा. यहाँ पर डेसिमल के बाद 1 2 3 4 है, यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 ही है. ये वाला प्रॉब्लम इससे वाले भी करवाया था मैंने आप लोग. डेसिमल के बाद जितने लीस्ट रहेंगे ना योर आंसर शुड आल्सो बी इन दैट मेनी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑन. डेसिमल के पास यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 4 है. यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 है, तो आपका आंसर भी डेसिमल के बाद 2 ही होना चाहिए. तो योर बेस्ट ऑप्शन विल बी इक्वल टू 9.98. क्लियर? हाँ ओके सर. ओके. तो इसका आंसर बताइए जल्दी से. द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एंगुलर मोमेंटम. Option B, sir. एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला जल्दी से. L is equals to mv into r. Mass m, velocity L t power -1, distance L, so it is your ml square t power -1. आ गया ऑप्शन? Yes, sir. Second. सेकंड. चलो वेरी गुड. डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस अब यहाँ पर रखेंगे आप लोग. डायमेंशन फॉर्मूला फॉर द सेल्फ इंडक्टेंस. सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला याद है, सेकंड ईयर में आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के चैप्टर में. ml square t1 is to a -1. सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला बताइए चले. सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला मालूम है, फैराडे सेकंड लॉ. E is equals to minus of L into di by dt. यानी L वैल्यू विल बी इक्वल टू हाउ मच फॉर मी बेटा? E into dt डिवाइडेड by di आएगा. E मतलब क्या बेटा? पोटेंशियल ना. पोटेंशियल इज नथिंग बट व्हाट? वर्क डन डिवाइडेड बाय, मैं कल बताया था मैंने आप लोगों को, V is equals to W by Q होगा. That is nothing but W. Q is equals to what? Current into time. तो ये हो गया वर्क डन डिवाइडेड बाय करंट
into time into this is also right now for me time and this is your current time. तो ये टाइम चले गया. वर्क डन का डायमेंशन ml स्क्वायर टी पावर -2 एनर्जी डिवाइडेड बाय करंट कितना हो गया बेटा, एम्पियर में मेजर होगा तो एम्पियर स्क्वायर. तो आंसर विल बी इक्वल टू ml स्क्वायर टी पावर -2 a पावर -2. आ गया. Yes. अगर फॉर्मूला याद रहना बेटा, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी, इसलिए करवा रहा हूं. E is equals to your L into di by dt, isn't it? L is equal to E into dt by dt. E can be written as a potential is nothing but E only beta. This potential is nothing but E only. कभी E लिखते हैं कभी V लिखते हैं, one and the same. Potential is equals to work done divided by charge. Work done is nothing but energy. Energy का dimension ml square t power -2 divided by a square. Don't tell me sir वो ज्यादा फास्ट जा रहे हैं, मैंने फर्स्ट क्लास में डिटेल में करवा दिया था. अगर आप स्पीड नहीं पकड़ोगे थे there is of no use. चलो नेक्स्ट वन, टार्क का फॉर्मूला बताइए जल्दी से. टार्क का फॉर्मूला बताइए जल्दी से. टार्क क्या होता है? टार्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. फोर्स मतलब L, फोर्स का डायमेंशन m into L t पावर -2. वेरी गुड. सो इट विल बी इक्वल टू ml स्क्वायर t पावर -2. ऐसा आ गया तो 4 मार्क पकड़ के आ जाओगे सीधा सीधा, लेकिन प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जल्दी से इसका बोलिए. प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया. फोर्स का डायमेंशन ml t पावर -2 डिवाइडेड बाय एरिया L स्क्वायर. ये वाला चला गया m L पावर -1 t पावर -2. L पावर -1 किसमें? सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन में. क्या आंसर होगा बेटा? Third option. थर्ड ऑप्शन. वेरी गुड. आ गया. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ अभी ऐसा वाला आएगा तो टाइम कंज्यूमिंग होगा, बट स्टिल यू कैन कीप एन ऑप्शन टू डू इट आउट. थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे तो आराम से निकल जाएगा. The frequency of vibration f of a mass m suspended from a spring of a spring constant k is given by the relation of type f is equals to c m to the power of x k to the power of y. Where c is a dimensionless constant, the values of x and y will be equal to how much? यानी frequency दे रखा है अपने को. Frequency is equals to your, it is depending upon your mass to the power of your x. Then it is nothing but f is spring constant. Spring constant मतलब क्या होता है बेटा? f is equals to k into x होता है. तो k is equals to f by x. k is your spring constant बेटा. Hooke's law याद आया? So ये हो गया m L t power -2 divided by L. L gets cancelled, so it is m t power -2. Clear? ये हो गया m t power -2 to the power of your y. Clear? Any doubt? Frequency का dimension कितना होता है बेटा? t power -1. Because frequency is reciprocal of time period. तो ये हो गया t power -1. तो t power -1 हो गया, तो ये हो गया m power of your, ये कितना बन जाएगा बेटा? m power of your x plus of your y, then L power of -2y. आ गया? तो m के पास यहाँ पर कुछ भी नहीं है. दिस इज m0 L0. तो x plus y will be equal to 0, isn't it? Then L के लिए भी इतना हो जाएगा, minus of 2y will be equal to 0. Done बेटा? Yes sir. CO. Frequency is time ना, ये t होगा ना, L क्यों लिखा? Sorry. Got it. This one is your m and this one is your t ना. t to the power of -2y है, L नहीं है, sorry. तो x plus y will be equal to 0 and -2y will be equal to t के साथ पावर कितना है बेटा? -1. माइनस से माइनस चले गया तो y वैल्यू विल बी इक्वल टू मच फॉर मी 1/2. अगर y की वैल्यू 1/2 है तो x की वैल्यू कितनी बन जाएगी बेटा? -1/2. So x value is -1/2 and y value is +1/2. What will be the answer? B. Fourth option. नेक्स्ट वाला ये बताइए जल्दी से. इसके बाद हम लोग ग्रांटेड स्टेप का स्टार्ट करेंगे ना, तो यूनिट्स एंड डायमेंशंस एरर के कंपलसरी रोज एक क्वेश्चन आता है, रोज एक बार आपका रिवीजन होते रहेगा. लास्ट का हाफ एन आवर और 40 मिनट्स विल बी गिविंग द टाइम ओनली फॉर डूइंग द मॉक टेस्ट पेपर्स बेटा. चलो, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन द विस्कस फोर्स एक्टिंग बिटवीन द लिक्विड लेयर्स ऑफ एरिया ए एंड विस्कोसिटी ग्रेडियंट एनीथिंग डिवाइडेड बाय लेंथ इज नोन एज ग्रेडियंट बेटा. यहाँ पर z मतलब लेंथ is given by f is equals to minus neta a into dv by dx, where neta is a constant called as coefficient of viscosity. Fourth option sir. formula for the neta will be equal to your how much? तो करवाया था मैंने आप लोग को. नीटा का डायमेंशन निकालना है. नीटा इज इक्वल्स टू योर हाउ मच फॉर बी? नीटा इज इक्वल्स टू योर f into ये हो जाएगा l डिवाइडेड बाय एरिया into your v is nothing but velocity. उतना ही ना?
फोर्स का डायमेंशन कितना होता है बेटा, ml t पावर -2, डायमेंशन दिस वन इज l, एरिया इज नथिंग बट l स्क्वायर, वेलोसिटी इज l t पावर -1, l स्क्वायर, ये l और ये l चले गया, इट इज योर m t पावर -2, और कितना बचा बेटा, एक l बच गया, तो इट इज l पावर -1, t पावर ये कितना है यहाँ पर -1 है, तो दिस विल बिकम फॉर मी t। कुछ जा रहा है, जाओ क्लियर। फिर एक बार लिख रहा हूँ, लिख लीजिए। m का डायमेंशन कितना बेटा, m l t पावर -2, दिस इज योर l, डिवाइडेड बाय एरिया इज नथिंग बट इक्वल टू योर l स्क्वायर इनटू वेलोसिटी इज l t पावर -1। क्या क्या जा रहा है देख लीजिए यहाँ पर, ये l और ये l, ये स्क्वायर चले गया, isn't it? So this will be equal to your m l पावर -1, t पावर -1 ऊपर जाएगा, t पावर -2 है, तो ये हो गया t +1। तो what will be the answer, m l पावर -1 t पावर -1, फोर्थ ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट वन, द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर द परमिएबिलिटी, द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर द परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी का फॉर्मूला याद है आप लोगों को, F is equals to mu naught by 4 pi into m1 m2 divided by r square, isn't it? और फोर्स बिटवीन टू वाइड्स भी ले सकते हैं हम लोग, F is equals to mu naught by your 2 pi into your I square into your L divided by your D, याद है? स्मॉल m क्या होता है यहाँ पर, पोल स्ट्रेंथ होता है बेटा, dimension formula for the permeability will be equal to your how much, आ गया, म्यू नॉट विल बी इक्वल टू how much बेटा, म्यू नॉट विल बी इक्वल टू, ये 2 पाई तो कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन नहीं रहेगा, तो दिस विल बी योर f into d square divided by I square into your L, यही होगा ना, None of this, sir. नन ऑफ दिस आ रहा है, तो डायमेंशन ऑफ द फोर्स कितना है, m l t पावर -2 है, दिस वन इज l स्क्वायर डिवाइडेड बाय करंट, करंट मतलब कितना हो जाएगा बेटा, a स्क्वायर ही होगा ना, into your L, तो ये l और ये l चले गया, दिस विल बी इक्वल टू m into l स्क्वायर आ रहा है, कुछ गलत किया क्या मैंने, फॉर्मूले में L नहीं आना, फोर्स पर यूनिट लेंथ में L नहीं आना शर्त है, अब आएगा, yes sir, none of the above. is also equal to your mu naught divided by 2 pi into I1 and I2, I can write as of your I square, this is force per unit length ना, divided by your D, फॉर्मूला याद है, between two parallel wires, तो mu naught की वैल्यू हो गई, ये निकालना है मुझे F into D, D मतलब ये दोनों वैसे भी कैंसिल हो जाएंगे, isn't it? Mu naught will be equal to your F divided by I square, सही ना, it is your m into L t power -2, फोर्स का डायमेंशन, current is nothing but a square, so this will be equal to m L t power -2 a square, a power -2, sorry, फर्स्ट ऑप्शन आ रहा ना बेटा, force per unit length between two wires formula, then ये वाला आप लोग एक बार ट्राई कर लीजिए, अब लंबा सारा क्वालिफिकेशन जाएगा, बट स्टिल यू कैन स्टिल प्रैक्टिस इट आउट, ये वाला भी कर सकते हैं बेसिकली, ये वाला कर सकते हैं क्या, देखो जल्दी से एक बार बता दीजिए, turpentine oil has been flowing through a tube of length L and radius R, the pressure difference between the two ends of the tube is P, the viscosity Same of the question, oil is sir. given, V is the velocity of oil, X is the distance from the axis, the dimension formula for the neta, so neta will be equal Same to how question, much,
हाँ, नीटा विल बी इक्वल टू प्रेशर मींस फोर्स बाय एरिया हो जाएगा, isn't it? Into you can add D or option. subtract the dimensions which are having the same only. तो r क्या है यहाँ पर बेटा मेरे पास? r x is nothing but equal to how much for me? Length, isn't it? कितना हो जाएगा ये? L square divided by 4 का डायमेंशन नहीं रहेगा, वेलोसिटी विल बी L t पावर -1, ये तो वेलोसिटी है ना, इनटू लेंथ, लेंथ मतलब ये मतलब दिस इज फोर्स, फोर्स का डायमेंशन ml t पावर -1 डिवाइडेड बाय L, एरिया इज नथिंग बट L into L स्क्वायर, ये भी हो गया L स्क्वायर गेट्स कैंसिल, इट इज L t पावर -1 into L। तो ये कितना आ रहा है देखिए, बेसिकली ml t पावर कितना आ रहा है देखिए, -1 L power -1 T power -1। जिस हो गया मेरे पास L स्क्वायर t पावर -1, L square will get cancelled, it is L power -1, फोर्स का डायमेंशन ml, फोर्स इज m into L into t power -2 होगा ना ये। Yes, sir. So simply we can find out the formula of eta also. हाँ, डायरेक्ट नीटा भी निकाल सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपकी मर्जी हो, अगर आप लोग उतना पास कर ले सक रहे हैं तो दैट इज आल्सो डायरेक्ट, लेकिन मैं दिए से डाटा से निकाल रहा हूँ। तो L t पावर -1 में ये भी L स्क्वायर हो गया, isn't it? So this one is your L square and this is t power -1, L square में ये स्क्वायर चले गया, this is your m L power -1, L power -1 एक ही ऑप्शन दिख रहा है तो इट शुड बी d, बाकी का करने की भी जरूरत नहीं है मेरे को, ठीक है ना, m L power -1 t power -1 आ गया। Yes, sir. नेक्स्ट वन, ये वाला करिए एक बार, बहुत बार करवाया मैंने। द टाइम डिपेंडेंस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी p इज गिवन एज p इज इक्वल टू p नॉट एक्सपोनेंशियल टू द पावर ऑफ -α into t स्क्वायर, अल्फा इज अ कांस्टेंट एंड t इज द टाइम। तो कांस्टेंट निकालना चाहिए, मैंने क्या बोला था, एक्सपोनेंशियल का कोई भी चीज रहेगी दैट विल बी योर डायमेंशनलेस, यानी -α into t स्क्वायर इज ए डायमेंशनलेस, यानी m 0 L 0 t 0, प्लस आर माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सो डोंट टेक द टेंशन रिलेटेड टू दैट वन। सो अल्फा इज इक्वल्स टू 1 by t स्क्वायर, ये हो गया t पावर -2, बस हो गई बात, हैज अ डायमेंशन ऑफ t पावर -2। Yes. चलो, which of the following is a dimensionless constant? Which of the following is a dimensional constant? Sorry, dimensional constant मतलब gravitation। Yes, sir. Relative density के लिए डायमेंशन नहीं होगा, पॉइजन रेशियो भी नो डायमेंशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज आल्सो नो डायमेंशन। ग्रेविटेशनल एक कांस्टेंट, ऐसा कांस्टेंट है जो कांस्टेंट भी है और उसके साथ डायमेंशन भी है, और जिसका एक और एक पेक्युलरिटी है जिसके अंदर मास का डायमेंशन नेगेटिव में आता है, याद है? वेरी इंपॉर्टेंट। चलो नेक्स्ट वन, which of the following will have the dimensions of the time? मैंने कल क्लास में भी करवाया था, स्टार्टिंग क्लास में। टाइम कांस्टेंट L by R के लिए डायमेंशन T हो जाएगा, RC के लिए भी डायमेंशन T होगा, Under root LC also. under root of LC is also your time. So what will be the best option here right now for me? L by R. L by R. Very good. Next one, ये वाला बताइए जल्दी से। The equation is given as P plus A by V square is equals to P into theta by V, where P is pressure, V is volume, theta is absolute temperature, Phi and V are constant. The dimensions of your A will be equal to your how much? I told you that you can add or subtract only those physical quantities which are having same dimensions. यानी P को अगर आप ऐड कर रहे हो मतलब P by P must be equal to A by V square, यानी A का डायमेंशन किसके बराबर हो जाएगा बेटा? A का डायमेंशन हो जाएगा प्रेशर और V के बराबर। प्रेशर मतलब क्या? फोर्स बाय एरिया। वॉल्यूम मतलब क्या हो जाएगा? L क्यूब। V मतलब प्रेशर का डायमेंशन क्या है बेटा यहाँ पर? V स्क्वायर है ना, तो ये V हो गया L क्यूब का स्क्वायर, फर्स्ट ऑप्शन सर, पावर 6 हो जाएगा, सॉरी। फोर्स का डायमेंशन ml t पावर -2 डिवाइडेड बाय हो गया L स्क्वायर इंटू L पावर 6, V स्क्वायर है ना बेटा, L पावर 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो L स्क्वायर में से ये L स्क्वायर चले गया तो यहाँ पर बचा कितना? 4, मतलब ये 5, यानी इट इज m into L पावर 5 t पावर -2। नेक्स्ट वन, ये तो कितने बार पूछा है यार, कोएफिशिएंट डी ऑप्शन सर, eta। थके होंगे आप लोग। सर L eta, पावर -1 t पावर -1, ठीक है ना, डायरेक्ट टिक कर दो। यस सर, D1। डी ऑप्शन, वेरी गुड। तो देखो 3-4 बार हो गया। द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी इक्वल टू हाउ मच? जल्दी से बताइए, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? First option. मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला, फ्लक्स इज इक्वल्स टू V into your A, isn't it? अब B का फॉर्मूला याद होना आप लोग को, बटिफाई करे रहे तो ठीक है, नहीं बोले तो आपको निकालने का तरीका आना चाहिए। F is equals to BQV फॉर्मूला याद है आप लोग को?
चार्ज पार्टिकल के लिए IBL also B is none. equals to your F divided by your B is equals to F divided by Q into V. फोर्स का डायमेंशन mLT पावर -2 डिवाइडेड बाय चार्ज. चार्ज मतलब क्या? I is equals to Q by T. Q is equals to करंट. करंट मतलब एम्पियर इनटू टाइम. वेलोसिटी मतलब LT पावर -1. तो ये कितना हो रहा है देखिए, बेसिकली ये L और ये L चले गए यहाँ पर, आ गया. तो IBL also we can find out. M L पावर यहाँ पर तो 0 हो गया. ये T और ये T भी चले गया. तो दिस इज योर T पावर -2 इंटू A पावर -1. A पावर -1 किस ऑप्शन में है? बेसिकली मेरे पास एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, बाकी के तो भी आपको करने की भी जरूरत नहीं पड़ रही. सो इट इज योर M T पावर -2 A पावर -1 इंटू एरिया. एरिया डायमेंशन कितना हो जाएगा? L स्क्वायर. यानी कितना बन जाएगा ये? दिस वन विल बिकम फॉर मी M इंटू L स्क्वायर T पावर -2 A पावर -1. विच ऑप्शन? फर्स्ट ऑप्शन. फर्स्ट ऑप्शन. वेरी गुड. Then which of the following have the same quantities? ये आप लोग ट्राई कर सकते हो. आप लोग ये भी आप लोग ट्राई कर लीजिए. मैंने करवा दिया. डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट आप बिना देखे बोल सकते हो. ग्रेविटेशन के लिए सेकंड ऑप्शन मास का नेगेटिव होना चाहिए. डन बोल के लिख सकते हो. द रेशियो ऑफ डायमेंशन फिजिकल कांस्टेंट हो, ये भी आप लोग कर सकते हो बेसिकली. ये आप लोग एक बार कर दीजिए जल्दी से मेरे लिए. You can add or subtract only those physical quantities which have the same dimensions. The velocity v of a particle at time t, v is equals to दिया रखा है a into t plus b by t plus c. यानी v will be equal to at and v must be equal to b by t plus c. t plus c ऐड कर रहे हो मतलब t का डायमेंशन t के बराबर होना चाहिए. तो c का डायमेंशन t के बराबर किस किस में दिख रहा है? एक ही ऑप्शन में दिख रहा है आप लोग को. कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ज्यादा पूरे करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है अपने को. वेरी गुड. क्योंकि देखो C का डायमेंशन मतलब C का डायमेंशन यहाँ पर L है. ये नहीं हो सकता. C is added to time. यानी C का डायमेंशन T के बराबर होना चाहिए. तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा. बाजी का सिर्फ ओनली फोर्थ ऑप्शन. बाकी करने की जरूरत ही नहीं है. चलिए नेक्स्ट वन. डायमेंशंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकली करवाया मैंने क्लास में. एक बार आप लोग ट्राई कर लीजिए. आप लोग अपना दिमाग लगाइए. इसको भी आप लोग कर लीजिए एक बार. और कहाँ से हो गया? सॉरी सर. हाँ बेटा. सर मैग्नेटिक फील्ड का मतलब निकालने के लिए डायमेंशन IBL भी यूज कर सकते हैं. क्या बोले? मैग्नेटिक उसका मैग्नेटिक मोमेंट का डायमेंशन निकालने के लिए IBL भी यूज कर सकते हैं सर. कौन सा प्रॉब्लम के लिए? ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए? नो सर. F is equals to IBL फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ना सर. मैग्नेटिक मोमेंट हाँ उसके यूज B करते के हैं. लिए F is equals to BIL भी यूज कर सकते हैं ना. F is equals to BIL भी यूज कर सकते हैं. कोई प्रॉब्लम. और ये भी लिख सकते हैं आप. F is equals to क्या बोलते हो? BQB रिलेशन है देखिए. F is equals to E into Q. फोर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता. E by B is equals to C. चलिए इसमें बताइए. द डायमेंशंस ऑफ हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू E स्क्वायर वेयर E नॉट इज अ परमिटिविटी ऑफ ए फ्री स्पेस एंड E इज द सर. यू आर इलेक्ट्रिक. नॉट शेयरिंग द स्क्रीन. नॉट शेयरिंग द स्क्रीन. क्या हो गया इसको? चलिए हाँ इसका देख लीजिए. The dimensions of half epsilon naught into E square. ये क्या होता है बेटा? याद है किसी को? एनर्जी डेंसिटी. एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. हाँ वेरी गुड. एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज हाफ इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू E स्क्वायर. एनर्जी मतलब क्या? M L स्क्वायर T पावर -2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. वॉल्यूम मतलब L क्यूब. ये कितना हो जाएगा? M L चले गया तो M इट इज L पावर -1 T पावर -2. वेरी गुड क्वेश्चन बेटा. तो कौन सा ऑप्शन आएगा यहाँ पर? M L पावर -1 T पावर यानी B विल बी द आंसर.
हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर इज एनर्जी डेंसिटी, याद रख लीजिए। ई बाई वी, और कभी कभी वर्ड भी यूज कर लेगा, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, ये भी इतना ही। डायमेंशंस ऑफ अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल C टू option, स्पीड sir. ऑफ लाइट, इट इज स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट मतलब एल टी पावर -1 वेलोसिटी। डन। चलो दे पेयर, ये वाला आप लोग प्रैक्टिस करना बेटा, मैं कराए तो भी यूज नहीं रहता, क्योंकि आप लोग जब तक दिमाग नहीं लगाओगे जब तक वो नहीं निकलेगा। ये वाला तो मैंने करवाया था, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल है, रेगुलर मॉडल है बेटा। If force, velocity and time are taken as the fundamental units, then the dimensions of the mass will be equal to how much? यानी mass is directly proportional to force, mass is directly proportional to velocity, mass is directly proportional to time. यानी capital M is equals to your force, मतलब m l t power -2 to the power of, मान के चलो सम x ले रहा हूँ, the next one is velocity l t power -1 to the power of, मान के चलो सम y ले रहा हूँ, then t, this is t to the power of z, कर लोगे ना? This is your m, this is your m to the power of x, l कॉमन ले लीजिए l के लिए, so this is your l x plus of your y, then t to the power of -2x, t to the power of -y, t to the power of z, this is your m1 l0 t0, कर लोगे? Yes, sir. x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी बेटा? x की वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी। इक्वेट द पावर्स, मास को मास इक्वेट करिए, लेंथ को लेंथ इक्वेट करिए, और t को t को इक्वेट करिए। अगर मैं इक्वेट कर रहा हूँ तो x की वैल्यू आ गई 1 मेरे पास, देन उसके बाद x प्लस y किसके बराबर आ गई? 0, यानी x वैल्यू विल बी इक्वल टू -y, यानी x की वैल्यू की y की वैल्यू कितनी हो गई बेटा? -1 आ गया। Fourth option, sir. क्या बोले? Fourth option. हाँ, फोर्थ ऑप्शन लिख सकता हूँ मैं, बाकी करने की भी जरूरत नहीं है, अभी दिख रहा है आप लोगों को v पावर -1, क्योंकि y जो है ना वेलोसिटी को है, वेलोसिटी का पावर कितना? y, तो y पावर -1 ही आना चाहिए, तो y मतलब यहाँ पर हम लोग ने वेलोसिटी को रखा है, तो यहाँ पर देखो फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा, सेकंड ऑप्शन नहीं होगा, थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन हो रहा है। और टाइम देख लेते हैं फिर भी एक बार, दिस इज योर -2x -y प्लस z इज इक्वल्स टू 0, तो -2x की वैल्यू कितनी है? 1, माइनस दिस इज -1 प्लस z इज इक्वल्स टू 0, आ गया। दिस इज -2 प्लस 1 प्लस z इज इक्वल्स टू 0, तो z की वैल्यू कितनी आ रही है? 1, 1. z की वैल्यू 1, फोर्थ ऑप्शन वाली था, Fourth option. आ गया। चलो ये भी आप लोग जरा टाइम निकाल के करिए बेटा, वेरी गुड क्वेश्चन, कंपलसरी आप लोग को एक बार करना है, एक बार आप लोग खुद से ट्राई करिए, देन इसको भी आप लोग एक बार खुद से ट्राई करिए, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल है, इसको भी एक बार आप ट्राई करिए, बेसिकली आराम से निकल जाता, नहीं हो रहा तो प्लीज लेट मी नो। तो उसके बाद डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस मैंने करवाया क्लास में आप लोग को, बस इतना ही है, ज्यादा कुछ, ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन से आप लोग कर सकते हो, ये वाला आप लोग थोड़ा टाइम निकाल के करने की एक बार कोशिश करिए बेटा। वाह, स्टेफेन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन पे मैंने करवाया, परमिटिविटी भी कर लिया, चलो डन। तो अभी एक लास्ट टॉपिक बच चुका है अपना, दैट इज अबाउट योर वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गेज, वो कल की क्लास में कर लेंगे, और कल से विल बी इवन प्लानिंग टू स्टार्ट योर ग्रैंड टेस्ट, कल ही कर लेंगे बेटा मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि वर्नियर कैलिपर्स स्क्रू गेज छोटा ही टॉपिक है, अगर 1 घंटे के अंदर हो गया तो देन विल ट्राई टू स्टार्ट दिस योर मॉडल पेपर, ठीक है। बट बिफोर दैट प्लीज ट्राई टू कंप्लीट दिस पेपर्स। आप बाय डिफॉल्ट आपको इस पूरे पीवाईक्यूज को खत्म करना है, और लेट मी नो, ठीक है। And Yes. please don't tell me to do this chapter and that chapter, beta. I'm purely trying to do only those chapter where we'll be first criteria will be crossing या 80 marks. छोटे chapters करेंगे, अच्छा करेंगे, practice करेंगे problems पे, then we'll try to go for that one. Logic gates हम लोग सीधा सीधा कर देंगे, क्योंकि direct question आता है उसके ऊपर, isn't it? पूरा कर लेते बेटा तो नहीं होता, isn't it? KTG भी कर लेंगे, thermodynamics भी करेंगे, heat transfer भी करेंगे, ray optics करेंगे, wave optics करेंगे, gravitation करेंगे, isn't it? And current electricity भी करेंगे, modern physics भी करेंगे, ठीक है ना? चलिए, Yes, sir. ओके चलो, टेक केयर बेटा, बाय। Thank you, sir. Thank you, sir.